Hello and welcome to the third lecture of our Newton's laws of motion. In the last two lectures, we discussed the first law and the second law. In this lecture, we will discuss everything that you need to know regarding third law of motion. Right? So let's discuss our third law of motion. Third law of motion क्या कहता है? ये बहुत फेमस स्टेटमेंट जो आप लोग सब लोगों ने सुना होगा. According to third law, for every action, there is an equal and opposite reaction. हर एक्शन के लिए एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है. एक्शन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन होता है. This is the Newton's third law of motion. But what does it signifies? कि क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि अगर कोई बॉडी A है और कोई बॉडी B है, अगर A B पर फोर्स लगाए, मान लेते हैं इधर की तरफ, this is force on B due to A. What is FBA? Force on B due to A, right? Then B will also apply force on A, क्योंकि for every action there is an equal and opposite reaction. अगर A ने B पे force लगाया तो B भी A पे force लगाएगा. That will be known as FAB. This is force on A due to B. So this force is acting on A due to B. So for every action there is an equal and opposite reaction. Clear? This signifies that forces always occur in pair. ये हमें बताता है कि forces हमेशा पेयर में, जोड़े में पाए जाएंगे. अगर कहीं भी आपको एक फोर्स दिखे तो ये फोर्स किसी पर लग रहा होगा और कोई ना कोई इसको लगाने वाला होगा, और बिल्कुल इसी के अपोजिट फोर्स कहीं दूसरे बॉडी पे पाया जाएगा, है ना? हमेशा, क्योंकि अगर एक बॉडी पे दूसरा फोर्स लगा रहा है दूसरा बॉडी, तो यह बॉडी भी दूसरे पर फोर्स बिल्कुल लगाएगा ही लगाएगा, बिकॉज दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हिच सेज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. क्लियर? नाउ सी, दिस लॉ इज अबाउट origin of force. This law is about origin of force. What is laws of motion? We discussed in the first lecture. Laws of motion is a complete set of definitions of force. Laws of motion किसके बारे में बताता है? Force का definition के बारे में. The first law gives qualitative definition of force. First law हमें force का quality बताता है, qualitative definition देता है कि force आखिर क्या कर सकता है. The second law gives quantitative definition of force. That force is equals to rate of change of linear momentum, and for Newtonian mechanics F is equals to ma. That's the quantitative definition. Quantity बताता है force का. And then there is third law. It tells us how forces originates. They originates when two bodies apply force on each other, and these two forces are equal and opposite. Clear? So this is called Newton's third law of motion, and this third law of motion is about origin of force. This gives us that how force originates, and we concluded that conclusion is forces always occur in pair. मतलब दुनिया में सिंगल फोर्स, अकेला फोर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता. अगर कहीं पर भी एक फोर्स है तो उसके इक्वल एंड अपोजिट दूसरा फोर्स कहीं ना कहीं जरूर होगा. Okay, so this is third law of motion, but there are some misconceptions among you guys in which you get confused. So I want to clear those confusion. कुछ misconceptions बच्चों में डेवलप हो जाता है और मैं चाहता हूं कि अभी उसको क्लियर कर दें. Misconception नंबर 1, अगर मैं कहूं कि देखिए ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, जैसे ही टेबल पे कोई ब्लॉक रखेंगे, इसका मास m है, तो इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए
in laws of motion we will draw a diagram called free body diagram. क्या ड्रॉ करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम, FBD कहेंगे इसको शॉर्ट में, फ्री बॉडी डायग्राम. सो व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम होता है कि उस बॉडी पर जो भी फोर्स लग रहा है उसको रिप्रेजेंट कीजिए. व्हाट इज FBD? representation of forces acting on the body. Mind this word, on the body. बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस को आपको दिखाना है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम. इस बॉडी की अगर बात करें तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना है तो इस बॉडी पर दो फोर्स लग रहा है. यहां पर एक अर्थ, इसका इस पर वेट mg लगा रहा है. कौन लगा रहा है? अर्थ. और दूसरा ये टेबल इस पर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ. इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं. एन से लिख रहे हैं, इसको नॉर्मल कहते हैं. अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में. अभी बस याद रखिए कि ब्लॉक को टेबल पे रखते हैं तो टेबल इस पे नॉर्मल लगाता है. ठीक. अब अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें से कौन एक्शन और कौन रिएक्शन है, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए मन में कि कौन इसमें से एक्शन है और कौन रिएक्शन है, और फिर वीडियो आगे देखिए. सोचिएगा. इस दोनों फोर्स में कोई भी एक्शन और कोई भी रिएक्शन नहीं है. ये जो दो फोर्स आपको दिखाए गए हैं इसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूं. These two forces does not form, these two forces, इसके आगे मैं यहां लिख रहा हूं, these two forces does not form action reaction pair. ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाते. अब पूछिए सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक्शन रिएक्शन कब होता है? जब दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाए. तो लुक एट दीस टू फोर्सेस. अगर मैं इस mg से पूछूं कि भैया mg तुम क्या करते हो, किस पर लग रहे हो, तुमको कौन लगा रहा है, तो कहेगा देखिए सर मेरा नाम mg है, मैं इस ब्लॉक पर लग रहा हूं. कौन लगा रहा है? अर्थ. सो this mg is force on block due to earth. राइट. इस पे चलिए नॉर्मल. ये नॉर्मल किस पे लग रहा है? ब्लॉक पर. कौन लगा रहा है? टेबल. सो दिस इज नॉर्मल ऑन ब्लॉक बाय द टेबल. ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पर लग रहे हैं. देखिए ये भी ऑन द ब्लॉक है और ये भी ऑन द ब्लॉक है. जबकि एक्शन रिएक्शन पेयर में ऐसा नहीं होता है. दो बॉडीज होते हैं, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं. यहां पर दो बॉडी पर ढूंढिए. तो अगर आप एक को ब्लॉक मान रहे हो दूसरे को टेबल, तो ब्लॉक टेबल पे जो फोर्स लगाएगा और टेबल जो ब्लॉक पे लगाएगा वो दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर बनेंगे. तो ये वाला फोर्स तो टेबल ब्लॉक पे लगा है, लेकिन ये वाला फोर्स ब्लॉक टेबल पे नहीं लगा रहा है. ये वाला फोर्स ब्लॉक पर लग रहा है, अर्थ लगा रहा है. ये सबसे पहला गलती जो करते हैं, ब्लॉक को सर टेबल पे रखे तो ब्लॉक टेबल पे जो फोर्स लगा है उसको mg कहते हैं. नहीं भैया, mg क्या है? वह फोर्स जो अर्थ किसी ब्लॉक पे लगाता है. ठीक. तो आप पूछिएगा सर जो ब्लॉक टेबल पे लगाता है उसको क्या कहते हैं? उसको नॉर्मल कहते हैं. दो सरफेस जब कांटेक्ट में होता है तो जो फोर्स लगता है उसको नॉर्मल कहते हैं. उसको मैं यहां बना के दिखा रहा हूं. ये जो टेबल है इस पर ये ब्लॉक रख दिए. इस ब्लॉक का मास m है. तो ये टेबल और ये ब्लॉक कांटेक्ट में आ गया, टच हो गया. तो ये टेबल इस ब्लॉक पे फोर्स ऊपर लगाएगा नॉर्मल, और ये ब्लॉक इस टेबल पे भी एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल. इक्वल एंड ऑपोजिट. देखिए डायरेक्शन अपोजिट है. फिर समझिए ये जो नॉर्मल है किस पर लग रहा है? ब्लॉक पे. देखिए मैंने किस पर लगते हुए दिखाया? ब्लॉक पे. नॉर्मल ऑन ब्लॉक बाय द टेबल. तो ये लग रहा है ऑन द ब्लॉक, और लगाने वाला कौन? टेबल. ये किस पे लग रहा है? नॉर्मल
ऑन द टेबल बाय ब्लॉक। तो किस पे लग रहा है? टेबल पे। लगाने वाला कौन? ब्लॉक। देखिए दो बॉडी, दो फोर्स, दोनों इक्वल, दोनों अपोजिट। क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर बात। अब देखिए ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। These two are action reaction pair. But these two are, ये जो दो फोर्स हैं, they are not. They does not form action reaction pair. ये दोनों action reaction pair नहीं है, क्योंकि action reaction pair में दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। यहाँ पर दो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहे। लगा रहे हैं, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें मैंने नहीं दिखाया था। ये नॉर्मल ब्लॉक पे लग रहा है, टेबल लगा रहा है, और ये mg भी ब्लॉक पर ही लग रहा है, जो कि अर्थ लगा रहा है। क्लियर? अब मेरा सवाल है कि चलिए भैया ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर था ही नहीं, तो इसमें तो बता ही नहीं पाए कौन एक्शन है कौन रिएक्शन, लेकिन ये तो है। अब इसमें कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है? वीडियो को पॉज करके सोच के बताइए। अब मन में ये सोचिए कि एक्शन किसको कहते हैं और रिएक्शन किसको कहते हैं। आप लोग सब पिक्चर देखते होंगे, कोई बॉलीवुड पिक्चर, एक हीरो आया, एक विलन आया, विलन ने हीरो को एकदम मारा, वो एक्शन हुआ। हीरो गिरा, फिर उठा, फिर उसने हीरो ने मारा, रिएक्शन हुआ। सो रिएक्शन इज समथिंग विच इज फॉलोड बाय एक्शन। मतलब एक्शन होता है एंड देन रिएक्शन कम्स। एक्शन पहले होता है, रिएक्शन बाद में होता है ना। देयर इज सम टाइम लैग, टाइम का गैप है। एक्शन वह चीज होता है जो पहले हो, और रिएक्शन वह चीज है जो बाद में हो। ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन होता है। और आप यहां सोचिए कि ये टेबल है, मान लेते हैं मेरा ये जो हथेली है वो टेबल है, और ये जो डस्टर है इस टेबल पे रखा हुआ है। जैसे ही इस डस्टर को, ये ब्लॉक को इस टेबल के कांटेक्ट में लाए, तो टेबल ब्लॉक पे नॉर्मल लगा देगा, ब्लॉक में टेबल पे उसी इंस्टेंट पे नॉर्मल लगाएगा। दोनों फोर्सेस सेम इंस्टेंट पे काम करना शुरू करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि टेबल कहेगा अच्छा ब्लॉक भैया तुम लगा लो नॉर्मल, मैं थोड़ी देर बाद लगाता हूं। ऐसा तो होगा नहीं। कांटेक्ट जैसे ही बनेगा दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा देंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन नॉट से व्हिच वन इज एक्शन एंड व्हिच वन इज रिएक्शन, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे लगता है, इसलिए हम लोग नहीं बता सकते कौन सा एक्शन है एंड कौन सा रिएक्शन है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से एक्शन रिएक्शन पेयर। ये क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। We can never distinguish, लिख दे रहा हूं, we can never distinguish that which force is action and which one is reaction, because they do not act they act because they act at same time, क्योंकि वो एक ही टाइम पे एक्ट करते हैं, काम करते हैं, इसलिए हम लोग ये नहीं बता सकते कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन। ये तो बात ये हो गई। तीसरा बात है, देखिए ये टेबल है, इस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक रुका हुआ है। ठीक है, कोई ब्लॉक रुका हुआ कब रहता है? जब नेट फोर्स 0, इस पर नेट फोर्स 0, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, तो इक्वल है, अपोजिट है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर इसको कैंसिल कर दीजिए। माइंड यू, ये जो दो फोर्सेस हैं नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल है। ये दो फोर्स मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ के दो फोर्स कभी भी एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग गलती करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ के दो फोर्स जो है एक्शन रिएक्शन, एक बॉडी ने दूसरे बॉडी को फोर्स लगाया, इसने भी इस पे लगाया, ये दो फोर्स एक दूसरे को कभी भी कैंसल आउट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दो फोर्स कब कैंसिल करेगा? दो फोर्स, दो वेक्टर तब एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए किस कोई पॉइंट है, इस पर इधर लगे 10 न्यूटन, इधर भी लगे 10 न्यूटन, तो नेट 0 होगा।
लेकिन ये कब होगा? जब दोनों इक्वल हो, अपोजिट हो और सेम ही बॉडी पर लगे, तब नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन ये जो दो फोर्स है इक्वल है, ऑपोजिट भी है, लेकिन सेम बॉडी पर नहीं लग रहा। ये नॉर्मल किस पे लग रहा है? ब्लॉक पर। ये नॉर्मल किस पे लग रहा है? टेबल पर। तो ये दोनों फोर्स कभी भी एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करते। सो द टू फोर्सेस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ never cancel because they act on two different bodies, right? क्योंकि वो दो अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करते। अब में से कोई ये पूछ सकता है कि सर तब यहाँ ये ब्लॉक रुका हुआ कैसे है? अगर ये दोनों कैंसल आउट नहीं कर रहा है तो ये ब्लॉक रुका हुआ कैसे है? कैसे इस पर नेट फोर्स 0 है? उसका कारण है कि इस ब्लॉक का एफबीडी देखिए यहां मैंने बनाया। अगर किसी भी बॉडी का मोशन को स्टडी करना है, किसी बॉडी के मोशन को जज करना है कि उस बॉडी का मोशन कैसा है, क्या वो रुका हुआ है, क्या वो चल रहा है, तो उस बॉडी का एफबीडी बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स को दिखाएंगे। देखिए ये जो बॉडी है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो इस बॉडी पर सिर्फ जो फोर्स लग रहा है उसको दिखाएंगे। इस बॉडी पर नॉर्मल ऊपर लग रहा है और इस बॉडी पर एनजी नीचे लग रहा है। इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स का मतलब कि इस बॉडी पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? टेबल नॉर्मल ऊपर लगा रहा है और एनजी मतलब अर्थ इस ब्लॉक पर फोर्स नीचे लगा रहा है। ये एफबीडी नहीं है। एफबीडी क्या होता है? फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है, लेकिन क्या ये फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है? नहीं, ये फोर्स टेबल पे लग रहा है। तो एफबीडी में फोर्सेस ऑन द बॉडी की बात करते हैं, फोर्सेस ऑन द बॉडी की बात करते हैं। क्लियर? क्योंकि ये दोनों फोर्स बॉडी पे लग रहा है, इसलिए दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, राइट? तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के दो फोर्स एक दूसरे को कभी कैंसिल आउट नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है? और एक्शन रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं। और हम लोग ये नहीं बता सकते कि कौन एक्शन है कौन रिएक्शन, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे लगना शुरू करते हैं, राइट? इसको देखिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। तो ये डिस्कशन था थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। आई होप आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन अब अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें जो मिसकॉन्सेप्शन होते हैं उसको समझ गए होंगे। मेरा काम है आपको इन सब बारीक बातों को समझाना, क्योंकि इन सब को समझने के बाद आपसे क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा और आप कुछ भी हैपोथेटिकली कुछ भी नहीं बता देंगे, ठीक है? सोचने का तरीका आपका सही होना चाहिए। क्लियर? तो ये तीन लॉ का डिस्कशन कर लिए। एक छोटा सा टॉपिक हम लोग कर लेते हैं आज, कि स्कूल में ये पूछा आता है जनरल डिराइव करने कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको हम लोग रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। पूछा जाता है प्रूफ करके दिखाइए इसको। क्यों कहते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन है, उसी के हेल्प से फर्स्ट और थर्ड लॉ भी प्रूफ हो जाएगा, इसलिए उसको रियल लॉ कहते हैं। मतलब न्यूटन सेकंड लॉ अगर जान गए तो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ उससे हो जाएगा। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करके लिखूंगा। ये जनरल 3 या 5 नंबर का आता है स्कूल में। फॉर स्कूल जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ स्कूल के लिए वो मैं आपको हमेशा लिखते रहूंगा और उनको आप करते चलेंगे ताकि आपको स्कूल में कभी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? ये स्कूल के लिए ही इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट न्यूटन्स second law is the real law of motion. तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ को रियल लॉ आखिर कहते क्यों हैं? न्यूटन सेकंड लॉ को रियल लॉ आखिर क्यों कहते हैं? तो ये लिखेंगे, हम लोग यही शुरुआत करेंगे कि न्यूटन्स सेकंड लॉ is called
called real law of motion because it can prove both फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। इसको रियल लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग फर्स्ट लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं और थर्ड लॉ को भी। तो अब दिखाना पड़ेगा भाई कैसे प्रूव करते हैं। तो पहले स्टेप में हम लोग दिखाएंगे प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ। प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ का प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? A body at rest will remain at rest and a body in uniform motion will remain in uniform motion. Uniform motion मतलब constant velocity से चलता हुआ body. A body in uniform motion will remain in uniform motion until and unless an unbalanced external force acts on it. That means अगर force zero हुआ, if force is zero, force zero का क्या मतलब? Force क्या होता है? Mass into acceleration, मतलब एक्सलेशन जीरो। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सलेशन जीरो? एक्सलेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ये मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। एक्सलेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट। सो देयर कैन बी टू केसेस। वेलोसिटी अगर जीरो, इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगा। ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहना है, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगा। मतलब अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest, will remain at rest। और सेकंड केस क्या हो सकता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ है 5 मीटर पर सेकंड मान लीजिए, तो फाइनल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड रहेगा। सो इसका मतलब अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, देखिए स्पीड तो सेम ही रहा, अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन will remain in uniform motion, will remain in uniform motion, right? So our body at rest will remain at rest and the body in uniform motion will remain in uniform motion until and unless an external unbalanced force acts on it। मतलब फोर्स जीरो है, ये दो बातें होगी, यही तो फर्स्ट लॉ कहता है। तो देखिए हम लोग फर्स्ट लॉ को प्रूफ किया, लेकिन किसके हेल्प से? सेकंड लॉ है। तो देखिए F इक्वल्स टू m लिखे ना, ये तो सेकंड लॉ है, F इक्वल्स टू m, और यहाँ से लाइक a जीरो है, यही क्या है? सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ की हेल्प से प्रूफ करके दिखाए कि फर्स्ट लॉ यही तो कहता था। क्लियर? सो दिस प्रूव्स फर्स्ट लॉ। सेकंड देखिए प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का प्रूफ समझिए। यहां पे एक बात आपको समझनी है कि अगर हम लोग एक दो बॉडी ले लें, ये एक बॉडी A है, ये दूसरा बॉडी B है, तो जो बॉडी A है वो इस बॉडी B पर फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, इसको FBA कहेंगे, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, और B जो है A पे लगाएगा, इसको FAB कहेंगे, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। अगर हम लोग इस पूरे को एक सिस्टम माने, इस पूरे को क्या माने? एक सिस्टम। ये पूरा क्या है? एक सिस्टम है। सिस्टम मैंने कहा था आपको किसको बोलते हैं? अगर ये दोनों को सिस्टम मान लिए तो ये जो दो फोर्स है इसको इंटरनल फोर्स कहेंगे। इंटरनल फोर्स किसको कहते हैं? वह फोर्स जो सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं। भाई ये फोर्स किस पे लग रहा है? ए पे। लगाने वाला कौन? बी। ये ए और बी दोनों इसी सिस्टम का पार्ट है, मतलब ये इंटरनल फोर्स हो गया। ये भी क्या हो गया? इंटरनल फोर्स। सो हियर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। Here there is no external force। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत अच्छा समझिएगा। Here there is no external force, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब किसी सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। कंजर्व रहने का मतलब कांस्टेंट रहता है, और इस बात को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल कहते हैं। ये बात आगे से याद रखना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी किसी बॉडी पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, कोई सिस्टम के बाहर से किसी सिस्टम पर फोर्स ना लगे, तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा।
दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, COMP। आप पूरा लिखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, शॉर्ट में COMP। ठीक है, क्या मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा? इसका क्या मतलब कि इस सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा P सिस्टम, वो कांस्टेंट होगा। पूरे सिस्टम का मोमेंटम का क्या मतलब कि A का मोमेंटम लिखिए प्लस B का मोमेंटम लिखिए और मोमेंटम वेक्टर सम है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो d/dt ऑफ PA प्लस d/dt ऑफ PB इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब d/dt ऑफ PA मतलब रेट, d/dt का मतलब क्या सिखाया था मैंने आपको? रेट ऑफ चेंज पिछले क्लास में। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ A, लीनियर मोमेंटम के रेट को ही तो फोर्स कहते हैं, dp/dt को ही तो फोर्स कहते हैं। तो A पर लगने वाला फोर्स कौन सा है? FAB प्लस FBA इज इक्वल्स टू 0। तो FAB कितने के बराबर हो जाएगा? दिस इंप्लाइज FAB इज इक्वल्स टू, मैं इसके बाद लिख रहा हूं, FAB इज इक्वल्स टू माइनस FB। मतलब FAB और FBA इक्वल है और ये नेगेटिव साइन में क्या बता रहा है? दोनों ऑपोजिट है। और यही तो थर्ड लॉ है, दिस इज थर्ड लॉ कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट भी नेगेटिव साइन बता रहा है। देखिए दोनों फोर्स इक्वल प्रूफ हो गया, FAB इज इक्वल्स टू FBA, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है और ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि दोनों डायरेक्शन वाइज अपोजिट। यही तो थर्ड लॉ कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैं फिर से बता रहा हूं मैंने क्या किया। इस पूरे को मैंने एक सिस्टम मान लिया, इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से कोई भी फोर्स लगाने वाला नहीं है। जब किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगता है तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक, ये हम लोग आगे बहुत बार पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल एक पूरा चैप्टर की तरह पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, कोलिजन, ये पूरा एक चैप्टर होगा हमारा। आई होप आपको ये अच्छे से थर्ड लॉ का प्रूफ समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ इज कॉल्ड द रियल लॉ। लेकिन आप पूछ सकते हैं इसमें सेकंड लॉ का कहां यूज किए? देखिए यूज किए d/dt ऑफ PA को F कहते हैं, यही सेकंड लॉ है। ये तो सेकंड लॉ है। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो d/dt ऑफ PA इसी को तो F कहते हैं। ठीक है, ये कहां से लिखे? तो सेकंड लॉ की हेल्प से लिखे, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था स्कूल एग्जाम के लिए। यहां पे मैं एक छोटा सा बात कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि इस बात का यूज आपको भी केमिस्ट्री में पड़ेगा। क्या यूज पड़ेगा मैं बताता हूं थोड़ा सा। आप जब रदरफोर्ड्स मॉडल डिस्कस करते हैं एटम का, तो वहां पे हम लोग एक बात चर्चा करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। तो समझिए, ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन अभी यहां है, इसका वेलोसिटी ये होगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए मतलब इसका वेलोसिटी इधर हो गया, मतलब वेलोसिटी चेंज कर गया कि नहीं किया? वेलोसिटी डायरेक्शनल क्वांटिटी। अगर मैं इसका वेलोसिटी 5 मान लूं तो अभी 5j कैप है, ये हो जाएगा -5i कैप। वेलोसिटी चेंज हो गया। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक्सलेशन कितना होगा वो भी निकाला है हम लोगों ने, एक क्वेश्चन मैंने करवाया था। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सलेट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सलेट करता है। अब हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम लोगों ने जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये कहा। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एक बहुत ही जाने माने फिजिसिस्ट थे। उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। He said in that theory that whenever a charged particle accelerates, it emits radiation in the form of electromagnetic waves, and so its energy decreases. This is called electromagnetic theory of Maxwell. Maxwell's electromagnetic theory कहते हैं इसको। मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलेट कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन एक्सलेट कर रहा है, तो ये अपना एनर्जी लॉस करते जाएगा। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। मतलब एक्सरे, गामा रेज, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इस सब के फॉर्म में
एनर्जी लॉस करते जाएगा और फाइनली इसका एनर्जी घटेगा। बिकॉज ऑफ दिस रदरफोर्ड्स मॉडल फेल्ड। इसलिए रदरफोर्ड मॉडल का ये ड्रॉबैक है कि रदरफोर्ड से पूछा गया भैया ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी, तो लॉस करते 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 इसका ऑर्बिट घटते जाएगा, ये न्यूक्लियस के साथ टकरा जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है? मैक्सवेल का थ्योरी यहाँ क्यों वैलिड नहीं है? तो रदरफोर्ड इसको नहीं बता पाए कि क्यों ये इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को लूज नहीं करता है। ठीक, रदरफोर्ड नहीं बता पाए। उनके बाद आए नील बोर। नील बोर ने कहा भी यही बात कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। सो लोग पूछे भैया फिर वो एनर्जी काहे नहीं लॉस करता है? बोर ने कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तब इसका एनर्जी कांस्टेंट रहता है, ये ना ही एनर्जी लूज करता है ना ही एनर्जी गेन करता है। तो ये सवाल खड़ा हो गया कि मैक्सवेल का थ्योरी तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्सलेट कर रहा है या कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सलेट कर रहा है वो तो एनर्जी लॉस करेगा, ये क्यों नहीं करेगा? नील बोर साहब बताइए। उन्होंने कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि फिजिक्स का ऐसा बहुत सारा थ्योरी है जो मेजर लेवल पे, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो, MACRO, मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े बड़े लेवल पे, जब ब्लॉक्स की बात करें, 5 kg का ब्लॉक, अर्थ का बात करें, इन सब पे वैलिड होता है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल लाइक एटॉमिक लेवल और न्यूक्लियर लेवल पे वैलिड नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नील बोर ने ये लिखा कि फिजिक्स का ऐसा बहुत सारा थ्योरीज है जो कि इन जनरल वैलिड होता है, लेकिन एटॉमिक लेवल पे या न्यूक्लियर लेवल पे जब उनकी चर्चा करते हैं तो वो वैलिड नहीं होता है। और मैक्सवेल्स थ्योरी इज वन ऑफ सच थ्योरी व्हिच इज नॉट वैलिड एट एटॉमिक लेवल एंड न्यूक्लियर लेवल। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कहानी है ये कि सोचिए रदरफोर्ड का ड्रॉबैक जो था वो नील बोर ने करेक्ट नहीं किया, बस खाली ये बात कहा कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक नहीं है, ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की थ्योरी का ड्रॉबैक है। भाई रदरफोर्ड की मॉडल का कोई ड्रॉबैक थोड़ी था, ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं घूम रहा है, मतलब ड्रॉबैक तो था, मतलब ये वाला ड्रॉबैक नहीं था, इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, ये एनर्जी लॉस नहीं करता था। ठीक है, रदरफोर्ड खाली इसको बता नहीं पाए, कह नहीं पाए कि मैक्सवेल गलत है, लेकिन नील बोर ने ये कह दिया कि मैक्सवेल गलत है, मैक्सवेल का थ्योरी यहां पर वैलिड नहीं है, नॉर्मल लाइफ में वैलिड है लेकिन यहां पर वैलिड नहीं है। आप पूछेंगे सर इसका हम लोग के प्रॉब्लम से क्या लेना? ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात है। लेना देना ये है कि अगर कुछ वैलिड नहीं है तो ऐसा कौन कौन सा है जो वैलिड है? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल और ये जो न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन है, 3 लॉज ऑफ मोशन, these are valid even at atomic and nuclear level. So these laws are called universally applicable laws. इन लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉज कहते हैं, क्योंकि ये एटॉमिक और न्यूक्लियर लेवल पर भी वैलिड होते हैं, राइट? So this concludes my today's lecture. This is it for the day. Thank you for being with us. Have a great day.